Hello guys, how are you? Today I'm going to show you a very nice video. The first firefighting pipe preparation. Before hanging the firefighting pipes, what shall we do when we receive the pipes? We receive the pipes only GI pipes. As you can see here in my video, you can see we have here Surya Prakash. This pipe is sprinkler pipe. As you can see, sprinkler pipe Surya ASTM A53. Our pipe size is 1 by 1/4, schedule 40, grade B, type E. This is called ERW pipes, and mostly this pipe we use for firefighting system. And this pipe is UL FM listed. You can see UL mark here. Okay, so the firefighting pipes must be UL, otherwise it won't allow to install the pipes in firefighting system as per the civil defense requirement. So we will start our preparation for the firefighting pipe. When we receive like this GI pipe, what shall we do? How it become red? So what is the procedure? What is the steps to make a red paint? So we will show you in this video how we will do. This is just sample piece we kept for you guys to understand. Usually what will happen, we do not in the stand, we just put it for you on the stand, but it will be on the like you can see here. This is a wooden piece, we call this murabba. Both sides we kept this one, and the pipe is laid like we kept here. 6-inch pipes are laid here. We do usually on the floor, and it will be done in the open space. It will not be done in the open space, sorry, because it should be a concealed space with the proper exhaust fan, because the paint smell is too much, so the exhaust must be there. So we should consider safety requirement for the people who will do the job. So now we just put it here for you only to show the pipes. Usually it done in basement area, and we will have exhaust fans over there, and the person who do this job, he will completely covered with PPE. PPE means personal protective equipment. So he will have his mask, gloves, everything. So the proper exhaust should be there for this one, otherwise suffocation will start, and so this. So you cannot work under the circumstances. So let's start our preparation work. For this preparation, we required a approved firefighting paint from the consultant. So what we have here for you to show, like we are using here national paints, protective coating, thinner. We require thinner here, and we have here the primer. After cleaning of the pipe, we will apply this primer. You can see zinc chromate primer. Yellow. This is the basic requirement for this firefighting pipe preparation. And then after this applying zinc chromate primer yellow, we will apply this synthetic enamel gloss 1670 vermilion red paint. We apply it. As you can see, we have sandpaper and brush, new brushes, 4-inch size, and the brush should be good, because the bristles should be good quality brush. Why? Because if the brush is not good quality, these bristles will come out and it will be stick on the pipes. So we should have proper good quality brushes in order to apply this kind of work.
If you don't have good quality brush, your paint finish will not come on the pipe preparation. So you must give good finishes, but the spray paint will give more finishes and glossy shine. So usually in the basement areas we use the spray paints. So there will be a open area and everybody park the car and people can look over there. So we should have a very glossy finish in the basement area. So open area will be glossy finish and the shiny finish, and in the concealed area we apply with the brushes. So this is the difference in the concealed area and the open areas. Good finishing on it, so we must clean this pipe before we start our preparation. So we are going to start here our preparation. Let's see and enjoy this video. Please subscribe to our channel, share my videos to others who are learning, who are in this field, wants to learn more. Please share this video, support us, comment, ask. We are here to help you guys, so don't worry, share as much you as, because everybody needs this basic knowledge. So if you have any doubt, questions, please you may ask us. Let's start our procedure. We are just mixing the paint. Till now, till that time, just enjoy this Burj Al Arab over here. We are now mixing our paint thinner with the. One more information to you guys. Proper mixing is very important with the thinner with the paint. Okay, so when you mix the thinner, you must check the thickness of the paint. So we have started our cleaning. As you can see here, we are now cleaning before we start our paint application. We are using sandpaper to clean the pipe first with any dirt or anything. Now we have started our first coating, as you can see. We don't do in open area. Why? Because in Middle East there are we don't know when the sandstorm will start. So if sandstorm will start, sand will be there, it will come and it will be stick on the pipe. So the finishing will be get damaged. So due to avoid that, it will be done in the covered area with the proper exhaust fans. So just to show you how we start and how we do the painting work and what is the steps we follow. So we are doing in open area. After that we will come immediately with the plastic. You can see here the plastic cover here. We will cover it by that one. So this first coat paint we will finish. After this first coat paint, we will keep 2 hours to dry this paint. So then we will apply another coat on it. Well, as per the specification of consultant, we have 2 primer coat and 2 red paint application. So this is the first coat we are applying now. The first step is you need to clean the pipe thoroughly, and it should be wiped with the cloth. Then the primer paint should be applied. First coat we have to apply, as you can see. If you apply like this and this two axis, then the finishing also will not come. So you make sure one direction you have to apply. Like here he is applying one direction, like this. So the lining will be one direction. So we have completed almost our first coat. So we have done our first coat. Now we are applying second coat. As you can see, now we are applying second coat on the first coat. We have finished already first coat. So now we started second coat now. As you can see here, we applied already around 4 hours ago.
2 hours ago first primer coat, and after 2 hours another primer coat. Now it's completely dry, you can see my hand. So now we will apply first coat of red paint, then another coat of red paint afterwards. So we are now applying first coat paint, red enamel vermilion, as you can see in this video. Same way we will apply another coat after dry. Now we are applying another coat of paint, as you can see. So it means 2 coat finish, our job is done. You can see the glossy finish. Assalamualaikum friends, welcome to MEB Tech Tips channel. This is your channel. First of all, I would like to say please watch the video till the end. We are going to share in between some interview point of questions and answers, uh, and some experience, our experience also in between. So please watch the video till the end and subscribe my channel, share as much as you can. And today's video for firefighting material, we are going to share with you some sprinkler hangers, threaded fitting, groove fittings, and some U-bolts. So other video or part 2 will also come. So you can see in my hand there is a sprinkler hanger 1 inch. This is available 1 inch to 6 inch, and this hanger is UL listed. UL is nothing but stands for Underwriters Laboratories, and is a product safety testing and a certification company. In order to become UL listed, a representative sample, and any sample of the product to be listed must be listed and tested, and it should be meet the safety requirements. Then only it will get UL listed mark on the product. So if you can see, there are some fittings also, and there is U bolts here. U bolt usually used in risers, and wherever you have fittings, bigger fittings like 6 inch, 4 inch, 3 inch, there you will use the U bolt with the help of rigid support. Rigid support I will explain you when I will show you the installation of firefighting pipe video. And these are the threaded fittings. Threaded fittings are available from half inch till 2 inch only. So these are the reducers. If you can see, these are the reducer of threaded fittings. These also UL listed and FM approved. And now FM, what is the meaning of FM here? FM also is an international leader in third-party testing and certification services. They normally test the property loss prevention products and services for use in commercial and industrial facility. So you can Google also. It's available in Google, full information about this. So that's the short form. And you can see there are various fittings are available, like reducer fitting and equality, and everything are UL and FM approved here. UL listed and FM approval. So it is there. You can see. I can show you. The logos are there. So it this if you have these logos, if these are tested, then only it will approved in civil defense. So you can see here there are groove fittings. Now you can see, you just now you have seen the threaded fittings. Now these are the groove fittings. These groove fittings are available from 2 inch above till whatever size you will use, like till 8 inch or 10 inch. So these are the mechanicalities. You can see these are the mechanicality. Mechanicality I will explain you very short, where how we will use this mechanicality. Is something different kind of fittings. You are maybe looking if the new person is there, because mechanicality usually used in 3 inch 4 inch pipes, because if you want to take a branch from 1 inch from 3 inch, we will use mechanicality.
And if you see this rubber gasket will fixed in center, where my finger, you can see I'm showing my finger over there. The rubber gasket will come over there. So from if you bigger pipe to smaller pipe, we will use this mechanical tees. And these are the various different sizes in mechanical tees. As example, see here, if you have any 1-inch branch, or if you have from the bigger size 1-inch branch like 4-inch 6-inch pipe, you have 1-inch branch, so you can use this. And these groove fittings we will use in jointing the pipes. And if you have bigger type of tees, 6-inch, 3-inch, 4-inch, 2.5-inch, you will use the coupling to join the fittings and to join the pipes. So in front in my hand there are some mechanically bigger sizes we kept separate here. And here you can see the fittings, groove fittings, bigger size 6-inch, and reducing T, bigger size with the you can see, and the logo you can see here ULFM is clearly mentioned over there. So all products of firefighting system must be UL listed and FM approval. You can see the bigger size 168.3 mm. Usually it comes like that, but you can also order in 6-inch also, you can order mm also, both you can order. So these are the couplings, and you can see in different sizes. These are the smaller couplings before I show the bigger coupling. So guys, part 2 also will come. I will show in part 2 the valves and other things of firefighting system. Do subscribe my channel, share as much as you can. Thanks for watching my channel and sharing my channel. Till next video, assalamu alaikum, jazakumullah khair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद और आप देख रहे हैं MEP टेक टिप्स चैनल, जो कि आपका चैनल है। और आज का जो वीडियो है फायर फाइटिंग सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है। और आज का जो वीडियो है, हम फायर पंप अनलोड कर रहे हैं, जो कि डीजल पंप, इलेक्ट्रिकल पंप एंड जॉकी पंप है और डीजल टैंक है इसके अंदर। जो मैं इसमें सिर्फ आज मेजर इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर हम आपसे शेयर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, टिप्स, जो कि आपको पंप डिलीवरी से पहले कुछ करना होता है, और पंप डिलीवरी के बाद और पंप डिलीवरी के वक्त आपको कुछ कंसिडर करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ईमेल करना होगा, यानी पंप डिलीवरी से पहले आपको ईमेल करना होगा कंस्ट्रक्शन मैनेजर को कि आपके पंप डिलीवरी शेड्यूल उसको बताना होगा ईमेल के ज़रिए। और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन करना होगा आपको, कि जैसे कि पंप का वेट आपका क्या है, और उसको डिटेल देना होगा ताकि वो इक्विपमेंट अरेंज कर सके आपके लिए, या आपके लिए टवर क्रेन से आप उसको अनलोड करेंगे, या फिर आप मोबाइल क्रेन से अनलोड करेंगे, या फिर आपको बॉबकैट होगा या JCB होगा, जो भी आपके पास साइट पे अवेलेबल हो, या फिर उसको अरेंज करना होगा। तो उसी वक्त पहला पॉइंट आप समझ में आ गया, आपको ईमेल करना होगा। दूसरी चीज़, आपके जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर होगा साइट का, उसके साथ मिलकर आप एक जगह फाइनलाइज़ करना होगा जहाँ पर आप टेम्परवरीली आपका पंप होल्ड यानी कि स्टोर कर सकें, ताकि आपका पंप रूम रेडी ना हो जाए। जो मेन पंप रेडी हो जाएगा तब आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड चीज़, आपको आपका पंप के लिए जगह फाइनलाइज़ करना होगा टेम्परवरीली। वो जगह सेफ़ चाहिए ताकि कुछ डेब्रिस यानी कुछ हैवी इक्विपमेंट, कुछ हैवी चीज़ें ना गिरें उसके ऊपर, तो आपका पंप डैमेज ना हो। तो इसके लिए आपको एक सेफ़ जगह आपको स्टोर यानी सेफ जगह फाइनलाइज़ करना होगा आपकी कंस्ट्रक्शन टीम के साथ। जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा उसका कंस्ट्रक्शन टीम रहेगा, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा कंस्ट्रक्शन मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल का, उसके साथ मिलकर आप एक सेफ जगह आपको लेना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पंप अनलोडिंग या कोई भी अनलोडिंग के लिए ये चीज़ें कंसिडर करना होती है। और आपको कोऑर्डिनेट करना होगा सेफ्टी टीम से, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर की है या आपकी सेफ्टी टीम है, दोनों के साथ, ताकि वो पंप आसानी से अनलोड हो और सेफ़ जगह पर पहुँचे। और उसको कुछ अगर आप पहले आपका सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ें पंप अनलोडिंग का, कुछ अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप मेल में ज़रूर मेंशन करिए कि ये कंसिडर करना होगा। और आपका जो भी रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर है
वो या फॉरमैन है या साइट इंजीनियर है या प्रोजेक्ट इंजीनियर है, अनलोडिंग के वक्त अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अनलोडिंग करते वक्त जो उसके हुक्स है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, वो हुक्स को प्रॉपरली आप लगाना होगा आपके। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टावर क्रेन अवेलेबल है, यानी कि जेसीबी बॉबकैट अवेलेबल नहीं है, तो वो इस हिसाब से हम लोग टावर क्रेन से उसको अनलोड कर रहे हैं और रैम्प पे रखेंगे, रैम्प से हम उसको अंदर लेकर जाएंगे। तो इसके जो हुक्स है, हुक्स रहते हैं वहाँ पर, तो प्रॉपरली आपको उसके जो हुक्स हैं, हुक्स में आपको टावर क्रेन के जो हुक्स आएंगे वहाँ पर आपको उसके अंदर लगाना होगा प्रॉपरली विद सेफ्टी के साथ। ठीक है, और जो एरिया रहेगा आपका, वो एरिया जहाँ से आप अनलोड कर रहे हैं या रोड से, जैसे कि हम लोग रोड से अनलोड कर रहे हैं, तो हम लोग ने रोड को ब्लॉकेज किया कुछ वक्त के लिए, वहाँ पर सेफ्टी बैरियर लगाया है, कुछ आदमी को खड़ा किया वहाँ पर, ताकि वो जो गाड़ियों का मूवमेंट होगा वहाँ पर उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो आप ये चीज़ें आपको लाजिम आपके ध्यान में रखना होगा जब आप अनलोड करते हैं आपका पंप। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने हमारा ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारा पंप को हमने अनलोडिंग किया है। आप देख सकते हैं हमने लिफ्ट किया है हमारे पंप को बाय टावर क्रेन, क्योंकि टावर क्रेन तो काफ़ी यानी 5 to 10 7 टन उठा सकता है वो, तो इसमें हर्ज नहीं है। हमारा पंप है जस्ट यानी कि उतने उससे ज़्यादा नहीं है, 1 टन से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 1 टन के अंदर ही है, तो हम उसको आसानी से उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम किस तरीके से हमारा पंप उठाए और हम लोग पंप प्लेस कर रहे हैं हमारा रैंप के ऊपर। ये जो है जहाँ प्लेस कर रहे हैं हमारा रैंप है, रैंप पे पास हम लोग क्या किए, वहाँ पर जो इसका फोल्डिंग रहता है ना, पाइप्स है ना, उसके पाइप्स रखें ताकि उसको हम रोल करते हुए लेके जा सकें आसानी से। ठीक है, तो सेफ्टी पर्सन होना ज़रूरी है आपको अनलोडिंग के वक्त, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट है, तो प्रॉपरली आपको अनलोड करना होगा, सेफली अनलोड करना होगा, और कुछ ना डैमेज हो जाए आपके पंप को या कोई भी एक्सीडेंट ना हो, तो वो सब चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको ये अनलोड करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट्स है पंप अनलोड करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करना है, ठीक है, कि आपका पंप सेफली आपके पास अनलोड हो जाए। तो और कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट करके, और आपको क्या वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे बताइए। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड जब भी होगा तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए मेरा नेक्स्ट वीडियो का। तो जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग माय वीडियोस, माय चैनल। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो जिसको और नॉलेज चाहिए एमईपी के बारे में उन तक ये पहुँचे। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वॉच करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद। वेलकम टू एमईपी टेक टिप्स एंड टुडेज़ वीडियो इन हिंदी एक्चुअली। जस्ट commented which language you would like to see my videos, so it will be very good for me to make video. So आप बताइए दोस्तों कि वीडियो आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, तो कमेंट कीजिए मुझे। तो आज का वीडियो है हिंदी में, और आज का वीडियो है फायर फाइटिंग सिस्टम। इसके अंदर हम देखेंगे आज फायर फाइटिंग पाइप इंस्टॉलेशन। मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जब इंस्टॉलेशन में हमको ध्यान में रखना है। तो और मे बी ये आपको कुछ क्वेश्चन में पूछ सकती हैं, तो हम शुरू करते हैं। चलिए चलिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फायर फाइटिंग पाइप हमने इंस्टॉल किया है। तो इसमें आपको सबसे पहले चाहिए फायर फाइटिंग अप्रूव्ड सिविल डिफेंस ड्राइंग। तो सिविल डिफेंस अप्रूव ड्राइंग चाहिए आपको, और सिविल डिफेंस अप्रूव ड्राइंग के होने के अलावा आपको कोऑर्डिनेशन ड्राइंग चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ड्राइंग जो है आपको एक शॉर्ट क्लिप में बताता हूँ कि कोऑर्डिनेशन ड्राइंग सारे हाई लेवल सर्विसेज को लेकर बनाते हैं। तो सारे सर्विसेज को लेकर बनाने का मकसद ये है कि उसमें जो क्लैशेस होते हैं वो क्लैशेस को अवॉइड करते हैं। तो क्लैशेस को अवॉइड करने के बाद, एक दूसरे से सर्विसेज से क्लैशेस को अवॉइड करने के बाद, इसमें फ़ाइनल रूट हम लोग निकालते हैं। तो फाइनल रूट निकालने के बाद हम लोग इसका
लैंडोरी से हम लोग स्लैब पे मार्क करते हैं। शायद आपको नज़र आएगा, मैं यहाँ पर जूम करूँगा, थोड़ा लाइट दिख सकता है मेरे ख्याल से आपको। तो बहुत धीमा दिख रहा है, आप देखिए, आप सपोर्ट के पास थोड़ा नज़र डालिए जहाँ पर थ्रेड डॉट लगा है। तो एक्चुअली हम लोग लैंडोरी से मार्क करते हैं, यहाँ पर एक आदमी ठहरता है, वहाँ पर एक आदमी ठहरता है, उसकी हेल्प से हम लोग लैंडोरी से मार्क करते हैं ऊपर स्लैब पे। मार्क करने के बाद में हम लोग यहाँ पर सपोर्टिंग डिस्टेंस होता है हमारा, सपोर्टिंग स्केड्यूल होता है, जिसमें इसमें हैंगर रॉड्स और इसका साइज़ कितना है पाइप के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पाइप है यहाँ पर 4 इंच, तो वो 4 इंच का पाइप के लिए कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है आपको, यानी कि पाइप यानी कि 3 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है या 2.5 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो अभी यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट किए हमारा 4 इंच का पाइप है, तो 4 इंच के पाइप में हम लोग हमारा थ्रेडेड रॉड जो इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर 10 mm थ्रेडेड रॉड इस्तेमाल किए हैं। और थ्रेडेड रॉड तो नॉर्मल है, आप जान सकते हैं थ्रेडेड रॉड। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो लेंथ है हमारा पाइप से पाइप का लेंथ के बीच में ये है कपलिंग है, ठीक है। तो हमारा जो लेंथ है काफ़ी लंबा है, तो 5.8 मीटर का लेंथ है। तो और एक 5.8 मीटर दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमारे को कपलिंग ऐड करना पड़ता है, और हम कोशिश करते हैं कि हमारा सपोर्ट कपलिंग के करीब में रहे। और ये भी ध्यान में रखना पड़ता है आपको कि जहाँ पर जॉइंट है आपका सपोर्ट वहाँ पर करीब में आए। तो जब कैलकुलेशन करते हैं ब्लाइंड डोरी मार के, तो ये भी कोशिश करेंगे आपका सपोर्ट क्या है वहाँ पर आ सके जॉइंट के करीब में, ताकि प्रेशर टेस्ट में आसानी हो। प्रेशर टेस्ट में जब लीक के चांसेस जॉइंट में बहुत होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग लैंडोरी मारने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि सपोर्टिंग डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल 4 इंच तक आपको 2.5 मीटर मेंटेन करना होता है एज़ पर NFP रिक्वायरमेंट। तो हम लोग 2.5 मीटर के हिसाब से वहाँ पर सपोर्ट का लैंडोरी के ऊपर मार्किंग कर देते हैं, और फिर मार्किंग करने के बाद थ्रेडेड रॉड हैंग कर देते हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं पाइप मटेरियल ऑफ फायर फाइटिंग, तो उसके अंदर मैंने पूरा क्लियरली बताया हैंगर हम लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग फिटिंग्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 4 इंच का हैंगर इस्तेमाल किए हैं और 10 mm का थ्रेडेड रॉड इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हो गया आपका, आप फर्स्ट रूट फाइनल कर लिए, आप लैंडोरी मार्क कर दिए, उसके बाद आप थ्रेडेड रॉड फिक्स कर दिया, आपका डिस्टेंस मार्क कर दिया एज़ पर स्केड्यूल, आपका जो डिस्टेंस है पाइप के हिसाब से, प्लस आपका यहाँ पर रॉड सेलेक्ट कर लिया, आप हैंगर लगा दिए, जो हैंगर 4 इंच का लगता है यहाँ पर। तो 1 से 2 हैंगर लगाने के बाद में, 2 हैंगर फिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है पाइप को चढ़ाने की। तो पाइप को चढ़ाने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर इसका फोल्डिंग, और वो इसका फोल्डिंग आपको पता है, मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हूँ कि इसका फोल्डिंग आपको सेफ्टी डिपार्टमेंट से अप्रूव चाहिए। वो उसका फोल्डिंग जब आप एरेक्ट करेंगे उसका फोल्डिंग, उसके ऊपर टैग चाहिए सेफ्टी डिपार्टमेंट का, ताकि आप उस पर ठहर के काम कर सके सेफली, ठीक है। तो वो पाइप थोड़ा 4 इंच का वज़न होता है, तो उसके लिए उठाने के लिए आदमी लगेगा आपको, तकरीबन 3 आदमी तो लगेंगे कम से कम। उसको एक आदमी नीचे रहेगा, 2 आदमी ऊपर रहेंगे इसका फोल्डिंग के ऊपर। अब पाइप चढ़ाने के बाद में वो जो हैंगर आप फिक्स कर देंगे, पहले हैंगर फिक्स करेंगे पाइप लगाने से पहले। हैंगर फिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, एक साइड से पाइप को पुल करेंगे, आप पुल करके आप एक हैंगर से अगले हैंगर में आप चढ़ा देंगे, पाइप को चढ़ा के छोड़ देंगे आप पाइप को। छोड़ने के बाद में आपका पाइप हैंग होंगे। अभी उसी तरीके से आगे के जॉइंट्स भी आप पाइप लगाते जाएंगे जब तक आप ब्रांचिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपका मेन पाइप लाइन आपकी हैंग होने के बाद में आप एक समझिए कि आप एक रूट फाइनल कर लिए, इतना एरिया क्लियर है आपके लिए काम करने के लिए। वो एरिया आप फाइनल करने के बाद में आप एक 4 इंच का पाइप, जितना लेंथ का पाइप है आप उतना लेंथ का पाइप आप तैयार करके आप हैंग कर देंगे। हैंग करने के बाद आप देखेंगे पाइप हैंग करने के लिए पहले ग्रूविंग चाहिए जॉइंट करने के लिए। तो आप मेरा वीडियो देखिए पिछला, उसमें ग्रूविंग का मैं स्टेप बाय स्टेप पेंट और ग्रूविंग का बताया हूँ। जो पहले पेंट होता है, उसके बाद ग्रूविंग होता है, ग्रूविंग होने के बाद में हम लोग हैंग करेंगे पाइप को, ताकि फिर जॉइंट करने में आसानी हो, ठीक है। तो ग्रूविंग इंपॉर्टेंट है आपको हैंग करने से पहले। और यहाँ पर आप अब स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारा, अब एग्जांपल आप एक सर्टेन लेंथ आप पूरा डाल दिए, समझिए कि आप 4-5 लेंथ आप पाइप लगा दिए, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ब्रांचिंग, ठीक है। आप ब्रांचिंग स्टार्ट करने के लिए आप, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पर जो मैं एक ख़ास फिटिंग्स बताऊँगा आपको मैं यहाँ पर,
यानी कि थोड़ा स्पेसिफिक लेके जाऊंगा मैं। फिटिंग्स हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर इसमें नहीं कवर कर सकूँगा तो मैं और एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए सारा फायर फाइटिंग सिस्टम किस तरीके से हम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मैकेनिकल टी। ये जो फिटिंग लगा है सपोर्ट के बाजू में, जो पाइप हैंगर के बाजू में, ये है वो मैकेनिकल टी। मैकेनिकल टी हर जगह पर यूज़ नहीं होता है, सिर्फ फायर फाइटिंग सिस्टम में मैकेनिकल टी इस्तेमाल होता है। और ये मैकेनिकल टी के लिए ग्रूविंग नहीं चाहिए, स्पेशली मैकेनिकल टी के लिए ग्रूविंग नहीं चाहिए। जहाँ पर बड़ा टी लगेगा, यहाँ पर एल्बो लगेगा, 45 डिग्री एल्बो लगेगा, ये आपको ग्रूविंग चाहिए पाइप में, मगर मैकेनिकल टी के लिए आपको ग्रूविंग नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैकेनिकल टी कैसे हमने फिक्स किया है। तो यह मैकेनिकल टी आप प्रीवियस मेरे फायर फाइटिंग मटेरियल में देखिए, मैकेनिकल टी में देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको गैस्केट किधर था। तो हम लोग ऊपर क्या करेंगे, पाइप के ऊपर वहाँ पर एग्जैक्टली सेंटर में होल सा कटर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसको होल करेंगे। आपको होल सा कटर अवेलेबल है 1 इंच से लेके 2 इंच तक, 2.5 इंच तक होल सा कटर अवेलेबल है। वो होल सा कटर से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर होल करेंगे। होल करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग सीधा मैकेनिकल टी ऊपर रख के, गैस्केट रहेगा, गैस्केट को एडजस्ट करके हम बिठा देंगे उसको। बिठाने के बाद में उसको जो आप देख रहे हैं उसके बाजू ये कपलिंग के साथ में, ये जो कपलिंग है मैकेनिकल टी का, वो कपलिंग साथ में आता है, नट बोल्ट भी साथ आता है उसका। हम नट बोल्ट उसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपका मैकेनिकल टी लग गया। मैकेनिकल टी प्रॉपर्ली फिक्स करना ज़रूरी है। और जब होल मारेंगे आप, उसका एक टुकड़ा रहेगा राउंड पाइप का, वो अंदर गिर जाएगा, वो निकालना मत भूलिए। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, बाय मिस्टेक, लेबर थोड़ा लेज़ी होता है या कुछ ये, तो छोड़ देगा अंदर, वो निकालना ज़रूरी है। अगर आप फायर फाइटिंग प्रेशर टेस्ट करेंगे वो जाके अटक सकता है, क्योंकि इसका फायर फाइटिंग प्रेशर टेस्ट बहुत हाई प्रेशर में होता है, तो वो ध्यान में रखिए आप। मैकेनिकल फिक्स करने के बाद देखिए, मैं यहाँ पर मेरा जो पाइप साइज़ है यहाँ पर 40 mm का पाइप साइज़ है। 40 mm के पाइप साइज़ के अंदर हमारा 6 से 7 स्प्रिंकलर हम लोग लगा सकते हैं, अप टू 7 स्प्रिंकलर्स हम लोग फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक पाइप स्केजुअल है, हर एक पाइप के अंदर आपको एक सर्टेन लिमिट तक आप स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। जैसे 6 इंच है तो कुछ 150 तक आप स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच का है तो आपको 2 स्प्रिंकलर लगा सकते हैं आप। तो हर एक पाइप के साथ एक लिमिटेशन है स्प्रिंकलर कितने लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो वो भी अगर स्केजुअल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज सकूं। आपको जो भी आपको जहाँ डाउट है इस चीज़ में, फायर फाइटिंग पाइप इंस्टॉलेशन में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए, मैं शॉर्ट पीस लगाया हूँ मैकेनिकल टी के बाद 40 mm का पाइप, उसके बाद एल्बो लिया हूँ। और उसके बाद एल्बो लेने के बाद देखिए आप, वहाँ पर रेड्यूसर टी मारा हूँ। रेड्यूसर टी लगाने के बाद में वहाँ पर अपराइट एंड पेंडेंट स्प्रिंकलर लगाया हूँ। तो अपराइट स्प्रिंकलर का यहाँ पर कुछ मैं डिटेल देना चाहूँगा, और पेंडेंट स्प्रिंकलर का। और पेंडेंट स्प्रिंकलर जो मैं खाली छोड़ा हूँ, यहाँ पर देखिए आप, ये पेंडेंट स्प्रिंकलर हम लोग का फॉल सीलिंग है, जब ख़त्म हो जाएगा तब हम उसको ड्रॉप करेंगे एज़ पर फॉल सीलिंग ड्राइंग के हिसाब से। जहाँ पर लोकेशन है उसको हम वहाँ ड्रॉप करेंगे। और जो अपराइट स्प्रिंकलर है यहाँ पर ख़ास तौर पे ध्यान में रखना चाहिए आपको। अपराइट स्प्रिंकलर हमारा जो है वो स्लैब के बॉटम से, और स्प्रिंकलर का जो हम स्प्रिंकलर लगाते हैं अपराइट पे, वो मिनिमम डिस्टेंस 250 mm चाहिए हमारे को। 250 यानी 10 इंच का डिस्टेंस हमको मेंटेन करना है एज़ पर NFPA रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके ऊपर आप, उसके नीचे आप नहीं जा सकते, तो उतना मेंटेन करना ज़रूरी है वहाँ पर। कहाँ से, स्लैब के बॉटम से स्प्रिंकलर का टॉप अपराइट का जो फिक्स करेंगे। अपराइट यानी कि ऊपर वाला, जो ऊपर का ब्रांच जा रहा है स्प्रिंकलर का, वो उसको बोलते हैं अपराइट। और जो नीचे का है वो पेंडेंट, जो खाली है। और पेंडेंट स्प्रिंकलर हम लोग कंप्लीट करेंगे बाद में, अभी नहीं कंप्लीट करेंगे उसको। और ये इंटरव्यू में आपको पूछ सकता है कि अपराइट स्प्रिंकलर का डिस्टेंस कितना मेंटेन करेंगे स्लैब से स्प्रिंकलर का टॉप तक, तो ये ध्यान में रखिए आप। और यहाँ पर मैं स्पेसिफिक फिटिंग दिखाते हुए जाऊँगा आपको यहाँ पर कि हम कौन सा स्पेसिफिक फिटिंग लगाए हैं। जैसे कि आप शॉर्ट पीस लगाया, मैं एल्बो लगाया, रेड्यूसिंग टी लगाया, उसके बाद एक ब्रांच लिया, और 1 इंच की स्प्रिंकलर, 1 इंच साइज़ के अंदर हम लोग 2 स्प्रिंकलर मैक्सिमम लगा सकते हैं। और 32 mm पाइप साइज़ के अंदर हम लोग 4 स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। और वैसे ही हम लोग 40 mm पाइप के अंदर हम लोग टोटल 7 स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। और एक बात यहाँ पर, स्प्रिंकलर से स्प्रिंकलर के बीच में गैप आपको 4.2 मीटर मेंटेन करना है। यानी कि हमको फॉल सीलिंग के ऊपर भी कवरेज सेम चाहिए, फॉल सीलिंग के नीचे भी हमको कवरेज सेम चाहिए, सही है। तो स्प्रिंकलर से आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर के गैप हमारे को 4.2 मीटर होना है। 4.2 के ऊपर हम नहीं जा सकते, ये एज़ पर NFPA रिक्वायरमेंट है। तो NFPA रिक्वायरमेंट हमको फॉलो करना ज़रूरी है। ये फायर फाइटिंग सिस्टम है, फायर फाइटिंग सिस्टम में आपको थोड़ा
केयरलेस नहीं काम कर सकते आप, विथ केयर काम करना है आपको, क्योंकि हर एक चीज़ चेक होती है। सिविल डिफेंस का इंस्पेक्टर आता है, सिविल डिफेंस का इंस्पेक्टर आके पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम चेक करता है, तो आप हर एक चीज़ इसमें अच्छे से चेक करना चाहिए फायर फाइटिंग पाइप इंस्टॉलेशन में ख़ास तौर पर। तो यहाँ पर हम लोग 4.2 आपको पूछेंगे, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कितना डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे फायर फाइटिंग पाइप इंस्टॉलेशन, फायर फाइटिंग पाइप स्प्रिंकलर। तो यहाँ देखिए आप, अभी हम आगे बढ़ते हैं इधर फिटिंग्स के अंदर। रेड्यूसिंग टी के बाद मैं रेड्यूसर मारा, एक शॉर्ट पीस लिया हूँ 40 mm का, उसके बाद रेड्यूसर लिया हूँ। रेड्यूसर यहाँ पर 40/32 का मैं रेड्यूसर इस्तेमाल किया हूँ। इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये पूरा 32 mm का पाइप रन किया हूँ, वहाँ पर इक्वल टी लगाया हूँ। इक्वल टी लगाने के बाद दोनों साइड में आप देख सकते हैं एक रेड्यूसर मारा हूँ 32/25 का, 32/25 का, ठीक है, ये 32 और सपोर्टिंग आप देखिए, सपोर्टिंग करीब में करना है आपको, यानी कि 300 से 400 के बीच में आपको आपके सपोर्टिंग करना है। जो हैंगर्स देख रहे हैं आप, मेरा 32 का हैंगर एक है या 25 का हैंगर है, क्योंकि ये राइट साइड में इसका लेंथ शॉर्ट है, इसका लोकेशन इधर ही है, इसकी वजह से हम 2 सपोर्ट के बजाय एक ही सपोर्ट दिए हैं यहाँ पर। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि छोटा पाइप है, अगर 2 सपोर्ट के बजाय एक सपोर्ट चल सकता है। अगर सपोर्ट है कुछ, तो फिर वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि 2 सपोर्ट की ज़रूरत है, मगर यहाँ छोटा साइज़ है, तो ये इस केस में आप ऐसा भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पाइपिंग का, क्योंकि जब प्रेशर टेस्ट करेंगे, हाई प्रेशर टेस्ट होगा इसका, तो उस टाइम पे लीक अवॉइड करने के लिए सपोर्टिंग 300 to 400 के अंदर ही आप सपोर्ट मानना है ये फिटिंग्स के अंदर, इस थ्रेडेड फिटिंग के अंदर। आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर, 2.5 इंच के ऊपर जो भी रहेगा आपका ग्रुप फिटिंग रहेगा, और 2.5 इंच के नीचे पूरा जो भी रहेगा आपको थ्रेडेड फिटिंग इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ और आपको ग्रुप फिटिंग्स बताऊँगा कि हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं ग्रुप फिटिंग। जैसे कि एक पाइप से 2 पाइप को जॉइंट करने में हमको कपलिंग इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बताया आपको कपलिंग, पाइप का कैसा कपलिंग इस्तेमाल होता है, मैं आपको और आगे ले जाऊँगा, कुछ और फिटिंग्स बताऊँगा मैं आपको। आप देखिए, और एक अहम बात यहाँ पर देखिए, हम लोग पाइप को क्रॉस कर रहे हैं, मगर फिटिंग हम लोग जो लगाए हैं केबल ट्रे के, मतलब केबल ट्रे के ऊपर नहीं आ रहा हमारा फिटिंग। केबल ट्रे के अंदर, केबल ट्रे के ऊपर कोई फिटिंग नहीं आना चाहिए, केबल ट्रे से अवॉइड करना चाहिए। आप क्रॉसिंग कर सकते हैं, मगर पैरेलल क्रॉसिंग कर सकते हैं, मगर उसको ऊपर आप रन नहीं कर सकते कोई भी पाइप। और एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको जूम करके यहाँ पर, आप यहाँ देखिए हम लोग हमारा फिटिंग कैसा अवॉइड किए हम लोग। ये पावर ट्रंकिंग जा रहा है, इसके लेफ्ट साइड में आप टी देखिए और राइट साइड में आप रेड्यूसर देखिए। हम लोग टोटली हमारा जो फिटिंग है अवॉइड किए हैं कोई भी केबल ट्रे और ट्रंकिंग के ऊपर जाने से, क्योंकि जब इनकेस अगर कुछ प्रेशर वाटर लीक होता है तो सीधा पावर केबल पे गिरेगा और कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आप हमेशा ध्यान में रखिए, कोई फिटिंग आपका केबल ट्रे ट्रंकिंग के ऊपर रन होना नहीं चाहिए, चाहे वो ड्रेनेज हो, वाटर सप्लाई हो, पीपीआर हो, कोई भी पाइप हो, ठीक है। कोई भी आप रन नहीं कर सकते, और कोई भी पाइप ऊपर से रन नहीं कर सकते। आप पैरेलली रन कर सकते हैं साइड में, मगर ऊपर रन नहीं कर सकते। यहाँ देखिए मैं रेड्यूसर दिखा रहा हूँ आपको, मेरा 4 इंच से 3 इंच पे मेरा पाइप रेड्यूस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर रेड्यूसर यूज़ किया हूँ, ग्रूव्ड रेड्यूसर। और यहाँ पर देखिए आप कपलिंग मैंने कैसे फिक्स किया है इसको, क्योंकि ये जो शॉर्ट फिटिंग्स होता है यहाँ केयरफुली आपको कपलिंग लगाना होता है। इंशाल्लाह आगे के वीडियोस में आपको दिखाऊंगा 45 डिग्री एल्बो कैसे फिक्स किया हम लोग, और हीट सपोर्ट क्या होता है, यू बोल्ट क्या होता है, और ज़्यादा सपोर्टिंग के बारे में हम लेके जाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। और आप मुझे ज़रूर बताना ना भूलें कि आपको किस लैंग्वेज में यहाँ पर आपको वीडियोस चाहिए, और प्लस आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इंशाल्लाह आने वाले की वीडियो में मैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा फायर फाइटिंग के ताल्लुक से। टिल नेक्स्ट वीडियो, जज़ाकमुल्लाह खैर फॉर वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद। वेलकम टू MEP टेक टिप चैनल। और मैं लास्ट टाइम पे रिक्वेस्ट किया था आप लोग से कि आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा आपको लैंग्वेज में वीडियो चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। बहुत कम लोगों ने कमेंट किया है, तो अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो दे सकूं और समझा सकूं कि किस कौन से लैंग्वेज में चाहिए। तो आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं फायर फाइटिंग पाइप इंस्टॉलेशन पार्ट 2, और इसके अंदर हम देखेंगे 6 इंच के एल्बोस और रिजिड सपोर्ट, यू बोल्ट और 45 डिग्री एल्बो,
और राइज़र का अंदर कैसा हम लोग सपोर्टिंग करते हैं, उसका यू बोल्ट का क्या यूज़ है, क्योंकि हमने मटेरियल में देखा था यू बोल्ट भी हमने यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ पर यूज़ करते हैं और कहाँ पर उसका ज़रूरत पड़ता है, तो आज हम ये वीडियो में देखेंगे। और वीडियो दोस्तों पूरा आखिर तक देखें, क्योंकि इस बीच में हम लोग हमारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, और मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, और वीडियो कौन सा आपको और चाहिए मुझे बताइए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं फायर फाइटिंग पाइप इंस्टॉलेशन पार्ट 2। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ हमारा 6 इंच का पाइप रन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखें, ये ऊपर से पाइप आ रहा है और यहाँ पर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं पाइप को, क्योंकि एज़ पर कोऑर्डिनेशन ड्राइंग इसका जो लेवल फाइनलाइज हुआ है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से डक्ट हमारा पास हो रहा है, उसके ऊपर चिल वाटर पाइप है, तो हम लोग स्ट्रेट रन नहीं कर सकते पाइप को, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉप किए हैं फायर फाइटिंग पाइप। और यहाँ हमने यूज़ किया है 45 डिग्री एल्बो, आप देख सकते हैं 45 डिग्री एल्बो, और उसके बाजू में देखिए आप, ये 6 इंच का 45 डिग्री एल्बो है, और राइट में लेफ़्ट में आप देख सकते हैं वहाँ पर कपलिंग है, उसकी कपलिंग की मदद से हम लोग ने इसको जॉइंट किया है। तो 6 इंच का पाइप प्लस 45 डिग्री एल्बो देन कपलिंग, हम दोनों को जॉइंट करने के लिए कपलिंग इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पर पाइप के अंदर पाइप दिख रहा है आपको, वो पाइप को हम स्लीव कहते हैं। जहाँ पर हमारा वॉल क्रॉस होता है वो वॉल क्रॉसिंग में हम स्लीव लगाते हैं। तो क्योंकि पाइप हम डायरेक्ट पास नहीं करते वॉल के अंदर से, इन केस बाद अगर आपको रिमूव करना होता है तो वॉल भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो स्लीव होता है, तो स्लीव के अंदर से पाइप आप निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। और ध्यान में रखिए, आप जब भी फिटिंग लगाते हैं कोई वॉल क्रॉसिंग में, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है आपको कि आपका फिटिंग वॉल के अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी फिटिंग वॉल के अंदर नहीं आना चाहिए, वॉल से हमेशा उसको दूर रखना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिए कि आपका जो फिटिंग है हमेशा वॉल से दूर रहना चाहिए, वॉल के बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और आपका जो भी फिटिंग है कोई भी इलेक्ट्रिकल केबल पे ट्रंकिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें जब इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो अभी ये देखिए, अभी आपने देखा है 45 डिग्री एल्बो हमने कैसे लगाया है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये है 45 डिग्री एल्बो, हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप करके इसका लेवल चेंज कर दिया हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं यहाँ पर यू बोल्ट का क्या यूज़ है, और रिजिड सपोर्ट किसको कहते हैं, और यू बोल्ट कैसा यूज़ होता है। तो रिजिड सपोर्ट देखिए, जहाँ भी चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है वहाँ पर रिजिड सपोर्ट हमको ज़रूरत है। तो रिजिड सपोर्ट किसको कैसा यूज़ होता है, रिजिड सपोर्ट ये है कस्टम मेड है ये। यहाँ पर आपको चैनल लेना पड़ता है, सी चैनल। ये सी चैनल जो है ये आपको 4 मीटर की लेंथ में आता है, तो आपके हिसाब से इसको कट करके ऐसा वेल्ड करना पड़ता है। जैसे कि आप देखिए ऊपर स्लैब के ऊपर हमने इसको कैसे लगाया है, पहले हमारा आप रिक्वायर्ड लेंथ आप कट कर लें, कट करने के बाद उसको वेल्ड कर लें, और एक पीस को ऊपर छोटे से पीस को वेल्ड करने के बाद आप एंकर बोल्ट की मदद से उसको स्लैब के अंदर फिक्स कर दें। फिक्स करने के बाद नीचे यहाँ पर ये देखिए, आप नीचे यहाँ पर आप थ्रस्ट सपोर्ट इसको ऐसे लगा सकते हैं। थ्रस्ट सपोर्ट यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर यू बोल्ट भी ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, चलेगा। ऐसे थ्रस्ट सपोर्ट के अंदर यू बोल्ट लेना नहीं लेना चल सकता है, मतलब मुश्किल नहीं है। यू बोल्ट नहीं भी लेंगे, नहीं भी लगाएंगे चलेगा, और लगाएंगे भी तो चलेगा, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी का जो डायरेक्शन है ये सामने से आता है। ठीक है, ये सामने से आने के बाद में यहाँ पर हिट करेगा, इसके लिए इसको थ्रस्ट सपोर्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर थ्रस्ट सपोर्ट जैसे यूज़ करते हैं इसको कहते हैं रिजिड सपोर्ट। तो रिजिड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये है रिजिड सपोर्ट का पर्पस और यू बोल्ट का पर्पस। तो वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए आप, ये भी थ्रस्ट सपोर्ट। यहाँ पर हमारा पाइप जो है क्रॉस हो रहा है, यहाँ से हम लोग पाइप को हम बेंड कर रहे हैं, यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, इसके लिए हम लोग सामने लगाए। जहाँ पर भी पाइप अपोजिट डायरेक्शन में इसको हम लगाना है रिजिड सपोर्ट को, ना कि जहाँ पर फ्लो होगा वहाँ नहीं लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि अब ये जो वाटर है ये सामने से ऐसा जा रहा है, जाकर वहाँ पर हिट करेगा, वहाँ हिट करके वहाँ से टर्न करेगा। तो इसके लिए हम लोग वहाँ पर सामने ऐसा सपोर्ट दिए हैं, ताकि वाटर अगर हिट करेगा, क्योंकि प्रेशर हाई होता है इसके अंदर, हिट करेगा तो वो थ्रस्ट सपोर्ट जो भी है, रिजिड सपोर्ट जो है उसको होल्ड करेगा।
तो आपने देखा है रिजिड सपोर्ट का क्या पर्पस है और रिजिड सपोर्ट कहाँ लगाते हैं। रिजिड सपोर्ट अगर छोटा बिल्डिंग है आपका, 12 मीटर का लेंथ है आपका पाइप, यानी मोर देन 12 मीटर लेंथ है, यानी कि समझिए कि आपका 18 मीटर लेंथ है, कंटिन्यूस लेंथ 18 मीटर है, तो 12 मीटर पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं रिजिड सपोर्ट को इन बिटवीन। ठीक है, तो ये पर्पस है रिजिड सपोर्ट का लॉन्ग लेंथ के अंदर। अगर आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग है यहाँ पर 100 मीटर रन हो रहा है पाइप, तो 24 मीटर हम इसको 24 मीटर पे हम लगाएंगे इसको रिजिड सपोर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा छोटा बिल्डिंग है, इसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग 12 मीटर भी नहीं क्रॉस हो रहा है, बस हम लोग जहाँ पर चेंज ऑफ डायरेक्शन है वहाँ पर हमने इसको यूज़ किया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और यहाँ पर राइज़र में किस तरीके से सपोर्ट किया है पाइप को, आप एक नज़र डालें। ये देखिए, ये हम लोग राइज़र के अंदर लगाते हैं सपोर्ट, ये सी चैनल की मदद से। देखिए सी चैनल कैसा लगा है इसको, ये सी चैनल जो स्लैब है, स्लैब का जो कट है, स्लैब के कट पे हमने बोल्डिंग किया है और प्लस यू बोल्ट लगाया है। ये है राइज़र सपोर्ट, और इसको यू बोल्ट लगाते हैं इसको भी। तो आपने देखा है अभी किस तरीके से हमने यू बोल्ट का इस्तेमाल किया है और किस तरीके से हमने रिजिड सपोर्ट लगाया है और कहाँ कहाँ पर लगाया है। तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि रिजिड सपोर्ट कहाँ पर यूज़ करते हैं और रिजिड सपोर्ट का क्या पर्पस है, कितना दूरी पे लगाना है रिजिड सपोर्ट, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। अगर फ्रेशर है तो नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर फ्रेशर नहीं है, एक्सपीरियंस पर्सन है, तो लाजिम पूछेगा ये क्वेश्चन आपको कि रिजिड सपोर्ट का क्या पर्पस है, कहाँ लगाते हैं, कितने मीटर पे लगाते हैं, क्या साइज़ है इसका, हर चीज़। आपको और डिटेल चाहिए इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। और मुझे बताना ना भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट में, आप मुझे बताइए। आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपको कैसा चाहिए और क्या वीडियो चाहिए। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको कौन सा वीडियो आप देखना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जिस तरीके से जहाँ पर जो एक सीरीज़ में ले जाना चाह रहा हूँ मैं, यानी कि फायर फाइटिंग पाइप इंस्टॉलेशन आपको पूरा बताऊँ, आपको PPR पूरा बताऊँ, इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ मतलब पूरा कंप्लीट लेके जाऊँ, जैसे कि वन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मेरा ये कोशिश है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, और फेसबुक पर शेयर करिए, और भी दीगर सोशल मीडिया है वहाँ शेयर करिए। और 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 क्या कहूँ, आप बताइए। बस आपका कमेंट्स का इंतज़ार है, तो बस कमेंट्स करिए और मुझे बताना ना भूलिए कि किस तरीके से कैसा लगा आपको ये फायर फाइटिंग पाइप इंस्टॉलेशन का वीडियो पार्ट 2। और इसके और काफ़ी सारा सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम है इसमें, तो मैं पार्ट 3 भी बनाने की कोशिश करूँगा कि और जैसे जैसे इसके अंदर काम बढ़ेगा हमारा, हम वो भी कवर करेंगे। तो अभी हमने देखा है सिर्फ अपर राइट स्प्रिंकलर एंड पेंडेंट स्प्रिंकलर, अभी हम देखेंगे साइड वार स्प्रिंकलर। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पार्ट 3 के अंदर मैं साइड वार स्प्रिंकलर भी कवर करूँगा, और बेसमेंट में किस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है, बेसमेंट में क्या क्या चीज़ हमको कंसिडर करना होता है, वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा बेसमेंट्स का। तो गाइस टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए, और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु फॉर वाचिंग। Assalamu alaikum friends, I came back again with a exciting video for you. This video is for firefighting pressure test, and it is done as per NFPA standards. So we will look today the firefighting pressure test, whole pressure test preparation and complete after inspection, how we opened the pressure and how it was closed, and everything we will see in this video. So let's start our process. For example, you can see now here our the pump is put it above the drum, and one side one my person is filling the water, and other side the pump is pumping the water inside the pipeline. And how it is connected you can see in the video, and there is a gate valve left and gate valve right side, and in between there is a pressure gauge to measure the pressure. And this is the main line
6-inch line which is connecting with the all whole ring of the building. So this pump is nearly 30 bar pressure, and we are going to do our pressure here almost 1.5 times of our system pressure. So you can see further video here. For preparing the pressure test for the sprinkler system, now we are doing today sprinkler system pressure test. You need to plug every single sprinkler. As you can see here, we have upright sprinkler, or this is the provision for pendant sprinkler, because sealing is still not been done, so we just kept it. So after sealing finished, when we start dropping also this pendant type, we again do the pressure test. But for the main ring, if you see this one, for the main ring of the perforating pipe and the branches, you can see here the branches, red color, all are being plugged. You can see the plug. This is the GI plug actually, 1-inch GI plug, because this is 1-inch pipe. That's why this is 1-inch GI plug. So we have put the plugs all single sprinkler, every single sprinkler. So before we start pressure testing of firefighting pipes, we need to do all sprinklers to be plugged properly. Then we need to start our filling of water in the system, and this system will be 1.5 times more than the system. So example 1.5 times means your system pressure is example 10 bar, you need to do more 5 bar, and 1.5 times 10 into 10 plus 15, 10 plus 5, sorry, so 15 bar pressure you have to keep in the system. So this is the arrangement of pressure testing, and we will do another pressure test for if you can see here, this is open pipe, this is wet riser sprinkler actually. So this wet riser sprinkler will be wet riser pipe will be done later. So today we have firefighting pressure test preparation for sprinkler pipeline. So this is all over the area we are preparing today. You can see the ring, the big ring, it's a very big ring, the main pipe, and from this we have branches. So today we have a pressure test of firefighting pipe, and as we have already installed and we have inspected, and the inspection already done for the installation of firefighting pipe. So now after inspection of firefighting pipe, we will do pressure test. So after filling the water in the system, you need to protect by these barriers, safety barrier, and you need to put the signboard over there, danger, high pressure testing in progress. Why? Because to aware all the people that system is in pressure. If anything damage, then it will be, we can show to safety department. It is covered with the safety barrier, even though they break. So it is compulsory. You have to put the sign over there. So we did our system pressurized now. As you can see, we have shown to concern as well, and he put the masking tape over there and he signed on it. And guys, please subscribe my channel, share as much as you can, and tell me how you want me to improve my video, so that I can improve more and I can bring very efficient videos to you. And if you would like to comment to have any video you want to see, so I will try to do the video. So now the consultant, in front of consultant, now we are going to open the pressure. We want to show to consultant now here the pressure. So I cannot record the video in front of him, so I am recording separately here. So my person is opening the pressure, but you can see, you can observe here, the wall is closed here, the right side of the pressure gauge. So he is showing now the pressure like this. So you can see over here, and the pressure is there in the line. Now after that, you can check this pressure gauge again, how much reduced after
removing the water. So almost it is 3 to 4 bar is removed. Now we are putting back again the pressure gauge. He told us to open the gate valve. Before it was closed, now open the gate valve, and then again open the pressure gauge. Now we are opening, you can see here we are opening the gate valve. Open the gate valve now, and he is trying to open the GI plug. And uh, you have to be very careful when while opening the GI plug, because now the pressure is up to the end, so it will come like a bullet. So you must be careful here, because it will hit your pipe range, and pipe range can fly to the other end, and it can damage to anybody if standing anybody there. So you should be clear the area when you are opening this kind of things here. So you have to be take careful in these kind of things. So you can see the pressure how it will be come out from this. So by this way we have done our pressure test and inspection everything with the consultant. So guys, please subscribe my channel, share my video, ask, comment, and till then, jazakallahu khairan. We'll see next video.